So Unit 4, Plant Physiology. It will be dealing with the description of structure and variations of living organisms, and it's basically how the working is going on. This unit, Plant Physiology, will deal with the working of various systems of plant. For example, chapter 11 is telling you the transport in plants. Chapter 12 is about mineral nutrition of plants. 13 is photosynthesis. 14th is respiration. And 15th chapter is plant growth and development. So these all processes which are going on in the living organisms, plants, are given in this unit. And this is the introduction which is given of the unit, that the two perspectives essentially rested on two levels of organization of life forms and phenomena. One described at organismic and above level of organization, while the second described at cellular and molecular level. So one is the anatomy. Anatomy is about the organization, that how the tissue cells are organized in the particular organism, what are its structure, what are is the outer structure, what is the inner structure. And physiology process is the biochemistry which is going on in flowering plants. This is explained in plant physiology. The process of mineral nutrition, plant photosynthesis, transport, respiration, ultimately after these processes, plant grows and develops. And molecular terms are there, context of cellular activities, and even at organism level, whatever, wherever it is possible, relation to physiological process or environment is discussed. Okay. Now the next page is about Melvin Kelvin. This is the scientist who discovered about photosynthesis, and he was given Nobel Prize also. In the next page, you can see there is a image of this scientist, Melvin Kelvin. It is given that he was a professor and PhD in chemistry from University of Minnesota, and he served as professor of chemistry at University of California, Berkeley. Just after World War II, when the world was under shock after the Hiroshima Nagasaki bombings and seeing the ill effects of radioactivity, Kelvin and co-workers put radioactivity to beneficial use. So जो हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बम गिराए थे, वहां पर उसने सोचा कि रेडियो एक्टिविटी से जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में आज तक वहां पर बच्चे अपंग पैदा होते हैं, बिकॉज डीएनए डैमेज करती है रेडिएशंस, उन बॉम्ब्स की रेडिएशन बहुत खतरनाक थी। तो जो उनके पेरेंट्स से दादा दादी से जो प्रॉब्लम्स थी वो आज तक बच्चों में आ जाती हैं। तो लाइफ में रेडियो एक्टिविटी का बहुत रोल हो सकता है। तो केल्विन और को वर्कर्स ने इस रेडियो एक्टिव को बेनिफिशियल यूज में यूज करना सोचा। He, along with J. Bassam, studied reactions in green plants forming sugars and other substances from raw material like carbon dioxide, water, and minerals by labeling the carbon dioxide with C14. So, heavy isotope carbon 14 का यूज करा उन्होंने और उसे कार्बन डाइऑक्साइड से रॉ मटेरियल्स, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक रॉ मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ही क्या होता है, प्लांट लाइट के प्रेजेंस में क्या बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है और अपना फूड बनाता है। तो उस तरीके से उसने, उस मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने
इसको यूज किया, रेडियो एक्टिविटी को यूज किया। ओके, सो हियर इट इज रिटन एंड कैल्विन प्रपोज दैट प्लांट चेंज लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। प्लांट ने लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने की एबिलिटी है। वो इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्गेनाइज्ड एरे में पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर से पास कराता है और मैपिंग ऑफ पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन इन फोटोसिंथेसिस अर्नड हिम नोबेल प्राइज। और पाथवे को, कार्बन के एसिमिलेशन की पाथवे को उसने क्या किया, ऑर्गेनाइज कराया, मैप किया कि किस तरीके से C3 साइकिल चलती है, और उसे नोबेल प्राइज मिला 1961 में। Principles of photosynthesis as established by Kelvin are at present being used in studies on renewable resources for energy and materials and basic studies in solar energy research. उसके photosynthesis के principle, उसको उसने जो इस्टेब्लिश किए, केल्विन ने ही वो प्रिंसिपल्स बनाए फोटोसिंथेसिस के, और अभी भी स्टडीज में यूज होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एनर्जी मटेरियल्स की स्टडीज में वो यूज होते हैं। ठीक है, तो ये मेल्विन केल्विन का कंट्रीब्यूशन था। देन नेक्स्ट टॉपिक्स जो आपके हैं चैप्टर में वो दिए हुए हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट चैप्टर है, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट से चैप्टर शुरू होता है। डिफ्यूजन से, मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन, इन यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। दिस इज द फर्स्ट पेज, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ओके, सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है यहाँ पे। Have you ever wondered how water reaches top tall trees? कैसे वाटर उतना ऊंचाई तक पहुंचता है, सेम डायरेक्शन में किस तरीके से चल पाता है, और मेटाबॉलिक एनर्जीज किस तरीके से बनती है पौधे में। कभी हमने इसके बारे में सोचा कि ये सब कैसे पॉसिबल है? तो ट्रांसपोर्ट का चैप्टर है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, यही सब ये बताएगा। और रूट से लेकर स्टेम तक और पूरे एक एक पत्ते तक पौधा कैसे पानी पहुंचाता है वो ये बताएगा। मूवमेंट अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंसेस भी, सेल्स के बीच में आपस में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कौन सी प्रोसेसेस लगती हैं वो भी यहाँ बताई जाती हैं। टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इन प्लांट्स, वन वुड हैव टू रिकलेक्ट वंस बेसिक नॉलेज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट बॉडी। बेसिक समझने के लिए हमें एनाटॉमी का पता होना चाहिए। तो एनाटॉमी का चैप्टर हमने पढ़ा है, हमें पता है कि देयर इज एपिडर्मिस, देन देयर इज कॉर्टेक्स लेयर, एंड देन इनर साइड टू द कॉर्टेक्स इज द एंडोडर्म। एंडोडर्म के अंदर क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जिन्हें वस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं, जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। We also need to revisit our understanding of diffusion besides gaining some knowledge about chemical potentials and ions. हमें अपनी नॉलेज को इनको भी ध्यान रखना पड़ेगा, डिफ्यूजन के बारे में भी जानना पड़ेगा, केमिकल पोटेंशियल्स और आयंस के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। जब हम मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो वी नीड टू फर्स्ट टू डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट। किसकी बात कर रहे हैं हम, एंड कौन सी चीजें मूव होनी है, ये भी हमें ध्यान रखना है। कभी पानी मूव कराया जाता है जाइलम के थ्रू, कभी वाटर, इसे जाइलम के थ्रू वाटर कंडक्शन बोलते, कभी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट कराए जाते, ग्रोथ रेगुलेटर ट्रांसपोर्ट कराए जाते हैं, तो वो हो जाता है ट्रांसलोकेशन। जब फूड का ट्रांसपोर्ट होता है और लॉन्गर डिस्टेंस के थ्रू होता है, तो जो फ्लोएम के थ्रू होता है फूड ट्रांसपोर्ट, उसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। An important aspect that needs to be considered is the direction of transport. In rooted plants, the transport in xylem of water and mineral is essentially unidirectional. ये important aspect है जो कंसिडर करना चाहिए। इस डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। रूटेड प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, वाटर एक ही डायरेक्शन में मूव करता है जो कि रूट से स्टेम तक करता है, और ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी, ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट्स मल्टी डायरेक्शनल जाते हैं। कभी वो किसी ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट्स, जाहिर सी बात है
सॉइल से लिए जाते हैं जड़ों के थ्रू, और फिर वो उन्हें हर डायरेक्शन में जाना होता है। पत्तों तक पहुंचते हैं, फूलों तक पहुंचते हैं, फलों तक पहुंचते हैं, पर जब कोई पत्ते डेड होने लगते हैं, पीले हो जाते हैं, तो उन पत्तों से वापस बैक वो दूसरे ग्रोइंग एरियाज में ऑर्गेनिक मिनरल न्यूट्रिएंट चले जाते हैं, क्योंकि अब तो पत्ता डाई हो चुका है, पत्ता डाई होके गिर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, तो उसमें से पूरा न्यूट्रिशन ले लिया जाता है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं कि आप ट्रांसलोकेशन हमने समझा, ट्रांसपोर्ट का हमने समझा। अब हम आगे का ये इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं। कंपाउंड्स सिंथेसाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस लीव्स आर एक्सपोर्टेड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन्स। जो मैंने बात कही कि जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो पत्तों के थ्रू जो बनेगा फूड, वो आपके एक्सपोर्ट किया जाएगा, स्टोरेज ऑर्गन्स तक भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। फ्रॉम द स्टोरेज ऑर्गन्स दे आर लेटर री एक्सपोर्टेड। एक बार वहां पर इकट्ठा करने के बाद वहां से वो वापस ले लिया जाता है। तो ये टू और फ्रो मूवमेंट होता रहता है। किसका? कंपाउंड्स का, photosynthetic nutritious compounds का। Mineral nutrients are taken up by the roots and transported upward into stem, leaves and growing regions. When any part undergoes senescence, जो मैंने बताया एजिंग हो रही होती है अगर किसी पार्ट की, या कोई डेड हो रहा होता है, तो वहां से न्यूट्रिएंट विड्रॉ कर लिया जाता है और ग्रोइंग पार्ट में डाल दिया जाता है। Hormones of plant growth regulators and other chemical signals are also transported through, though in very small amounts, sometimes in a strictly polarized or unidirectional manner from where they are synthesized to the parts. और कभी कभी स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड यूनिडायरेक्शनल मैनर में ही जो भी चीज होती है वो भेजी जाती है। जैसे कि पानी है, पानी तो जाहिर सी बात है, पानी तो ऊपर से नीचे नहीं आएगा। पानी क्या होता है, हमेशा नीचे से ऊपर ही जाता है पौधे में। पानी हमेशा हमें जड़ों को देना होता है, फूल पत्तों को पानी नहीं दिया जाता, क्योंकि जड़ें ही पानी अब्सॉर्ब करने के लिए बनी है। उनके ऊपर क्यूटिकल नहीं होता, बाकी सब जगह है। लीफ के ऊपर वैक्सी कवरिंग होती है पानी फिसलेने वाली, पानी स्लिप हो जाता है, बट रूट से पानी अब्सॉर्ब होता है, तो उसका मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है। और हर ऑर्गन रिसीव करता है कुछ ना कुछ सब्सटेंस और देता है दूसरों को कुछ ना कुछ सब्सटेंस। तो ये एक तरह से चलता रहता है ट्रांसपोर्ट हमेशा। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज पैसिव एंड मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर, फ्रॉम सेल टू सेल और इवन शॉर्ट डिस्टेंसेस। पैसिवली मूव होना पानी का बिना किसी एनर्जी के रिक्वायरमेंट की, अगर पानी मूव हो रहा है थोड़े से डिस्टेंस के अंतराल में और इंटरसेलुलर स्पेसेस लीफ के बाहर वहां तक जा रहा है, तो इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह के ट्रांसपोर्ट को जिसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। डिफ्यूजन उसका एक टाइप है, और डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस होता है। इट इज एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम्स। जरूरी नहीं है कि लिविंग सिस्टम्स में ही हो। हम देखते हैं डिओड्रेंट्स जब हम स्प्रे करते हैं, या हम किसको इंसेंस स्टिक यानी कि धूप बत्ती अगरबत्ती लगाते हैं, तो घर में पूरे में फैलती है बिकॉज गैसेस डिफ्यूज करती हैं, उनके अंदर मूवमेंट की एबिलिटी होती है। डिफ्यूजन इज ऑब्वियसली इन गैसेस एंड लिक्विड्स, बट डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज मोर लाइकली rather than of solids. Diffusion is very important to plants since it is the only means for gaseous movement within the plant body. Diffusion बहुत जरूरी है plants में, क्योंकि CO2 हमको पता है, CO2 ही फिक्स करते हैं प्लांट, CO2 ही लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसी से स्टार्च बनाते हैं। और पौधों की लाइफ पे ही पूरी वर्ल्ड की लाइफ डिपेंड है। हम लोगों की लाइफ हो चाहे जानवरों की लाइफ हो, सब हम लोग एनर्जी कहाँ से लेते हैं? पौधों से लेते हैं। तो उनके लिए डिफ्यूजन बहुत जरूरी है। डिफ्यूजन रेट्स आर अफेक्टेड बाय ग्रेडियंट्स ऑफ कंसंट्रेशन, परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन की स्पीड को भी कंट्रोल करते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, as pointed out earlier, gradient must already be present for diffusion to occur. हमने पहले ही बता दिया कि डिफ्यूजन में जो चीज जिस तरफ ज्यादा होती है, यानी उसके अंदर एक ग्रेडियंट होता है, वो चीज अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करती है बिकॉज ऑफ इट्स ओन एनर्जी। खुद के मॉलिक्यूल में इतनी एनर्जी है कि वो रुक नहीं सकती है। इट कैन नॉट स्टे, इट हैज टू मूव। सो डिफ्यूजन होने लगता है अपने आप ही। ठीक है।
तो जो हायर में है होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लोअर में आता है। डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है? साइज, सब्सटेंस के साइज पे भी डिपेंड कर सकता है। स्मॉलर जो चीज होगी वो उतनी जल्दी डिफ्यूज करेगी, क्योंकि उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ सी रुकावट नहीं होगी, आराम से मूव कर जाएगी। द डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन आल्सो डिपेंड ऑन सॉल्युबिलिटी, कितना घुल रही है वो लिपिड की लेयर में, उस पर भी। जो जितना ज्यादा लिपिड में घुलने वाली चीज होगी उतनी जल्दी सेल्स में पहुंच जाएगी। जैसे अल्कोहल का बताया था, अल्कोहल हर सेल तक बहुत जल्दी इसीलिए पहुंच जाती है क्योंकि इट इज डिसॉल्वेबल इन द लिपिड्स। Substance soluble in lipid diffuse through the membrane faster. Substances that have hydrophilic moiety find it difficult to pass through the membrane. Their movement have to be facilitated. और जो चीजें हाइड्रोफिलिक होती है, मतलब वाटर लविंग होती हैं, जो लिपिड्स में नहीं घुल सकती हैं, वो उनको मूव कराने के लिए फैसिलिटी देनी पड़ती है। मेम्ब्रेन में कुछ स्पेशल चीज होनी चाहिए जिससे वो मूव कर सके। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन सेटअप करना जरूरी नहीं है, बट एक फैसिलिटी जरूरी है। अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट, पहले से ही होता है। चीजें एक तरफ ज्यादा दूसरी तरफ कम होने से ही कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है, और इसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन शुरू होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में स्पेशल प्रोटीन्स मूव कराते हैं चीजों को बिना एक्सपेंडिचर एटीपी को खर्च किए। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कोई नेट ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स का नहीं कराती लो से हाई पे, वो हमेशा हाई से लो पे ही कराती है, क्योंकि लो से हाई कराने में एनर्जी एक्स्ट्रा लगेगी। अगर हम किसी चीज को कम जगह से हाई जगह पहुंचाएंगे तो क्या लगेगी? खूब एनर्जी लगेगी। ट्रांसपोर्ट रेट्स रीचेस अ मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड सैचुरेशन। ट्रांसपोर्ट की स्पीड जो होगी वो मैक्सिमम कब होगी? जब सारे प्रोटीन्स क्या होंगे ट्रांसपोर्टर के, सब में अगर खर्च हो रहा है, तब ट्रांसपोर्ट रेट क्या होता है? हाई होता है। सारे प्रोटीन्स पे कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट अगर हो रहा है तो ज्यादा सोल्यूट जा पाते हैं। आई होप ये तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि किस तरह से मेम्ब्रेन से, ये रहा पिंक कलर का, आप एनसीईआरटी में देखोगे ये वाला डायग्राम दिया है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, कि किस तरीके से पिंक कलर का कैरियर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, ब्लू कलर के मॉलिक्यूल को डिफ्यूज कर रहा है। ओके, सो इसका मैकेनिज्म भी दिया है। ठीक है, it is attaching to the solute on one side and it's rotating and then it's releasing the molecule on the other side. This is facilitated diffusion. Diffusion is very specific, so allows cell to select the substance. Specific है मतलब कुछ ही चीजों को diffuse करेगी। It is sensitive to inhibitors. अगर कुछ ऐसी चीजें environment में हुई जो इसको रोकेंगी, वो पहले अटैच हो गई सोल्यूट की जगह आकर, इनहिबिटर्स जिन्हें बोलते हैं, तो सोल्यूट डिफ्यूज नहीं होंगे, तो ये एक्ट हो सकती है इनहिबिटर्स के थ्रू। Proteins form the channel in the membrane from molecules to pass through. प्रोटीन्स ने चैनल बना रखा है मेम्ब्रेन के अंदर जिससे कि चीजें पास होती हैं। एंड अदर्स कैन बी कंट्रोल्ड, और ये कंट्रोल भी हो सकते हैं। सम आर लार्ज अलाउइंग वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल टू कॉज पोरिन्स। ऐसे प्रोटीन हैं जो कि मेम्ब्रेन में होते हैं, उनका साइज बड़ा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, प्लास्टिड्स में भी होते हैं, बैक्टीरियाज में भी होते हैं। और ये प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारी चीजों को पास करते हैं। Shows an extracellular molecule bound to the transport protein. The transport protein then rotates and releases the molecule inside the cell. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फिर रोटेट कर देता है और अपने मॉलिक्यूल को रिलीज कर देता है। अगर ये वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो इसे एक्वापोरिन्स कहा जाता है। जो 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर चैनल जिन्हें पोरिन कहा जाता है, एक्वापोरिन कहा जाता है, वो 8 डिफरेंट प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। जैसे कि टनल हो, आपने देखा है सुरंगें होती हैं कहीं कहीं बड़े बड़े पहाड़ों में, जम्मू में, तो सुरंगों में से जाता है एक रोड और वो पूरा एक केव्स के अंदर से बनाया हुआ होता है। तो उस टाइप का गोल टनल जैसा प्रोटीन होता है एक्वापोरिन, जिसमें से पानी जाता है, और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट ही होता है। अब ये जो 3 फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के 3 टाइप्स बताए हैं, डिपेंडिंग ऑन द कौन सा सब्सटेंस जा रहा है, कितने सब्सटेंस जा रहे हैं और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो पहला जो है यूनिपोर्ट ए, उसमें एक ही चीज जा रही है,
फ्रॉम वन साइड टू अदर, कैरियर प्रोटीन दिखा रखा है। एंटीपोर्ट में क्या होता है, दो चीजें जाती हैं और दोनों एंटी जाती हैं एक दूसरे के, वन इज गोइंग इनसाइड एंड अदर इज गोइंग आउटसाइड। सिम्पोर्ट में टू थिंग्स आर मूविंग एंड टूवर्ड्स वन डायरेक्शन। And passive symports and antiports. Some carrier or transport protein allows diffusion only if two types of molecules move together. कुछ कैरियर प्रोटीन ऐसे होते हैं जो तभी अपना एक्ट कर सकते हैं जब दो चीजें जाएं एक साथ, और इन अ सिम्पोर्ट both molecule cross the membrane in the same direction. Antiport they move in opposite direction. यहाँ तक क्लियर हुआ? You can tell me if it is clear or not, so that we can proceed or we can discuss anything which is left here. यहाँ तक क्लियर है सबको? Okay, then you can see, we will see the next page. On the next page, what's there? Uniport is explained and then active transport thing is explained. Okay, so molecules are moving. If molecules are moving across the membrane independent of other molecules, the process is uniport. Active transport uses energy to transport and pump molecule against the concentration gradient. तो अभी हमने देखा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो कि चीजों को उसके अगेंस्ट में लेके जाता है, कि जो चीज जहां पर कम कॉन्सेंट्रेशन में होती है ऑलरेडी, उसको ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन तरफ लेके जाता है, कम से ज्यादा तरफ ले जा रहा है, तो उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगनी बिल्कुल ऑब्वियस है, ऑब्वियस सी बात है कि उसमें एनर्जी लगेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल ऑलरेडी एक तरफ बहुत कम है और वो उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ ऑलरेडी ज्यादा है, तो फोर्सफुली उन्हें भेजना पड़ेगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कैरी करा जाता है स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की वजह से, ठीक है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स उन्हें कैरी करते हैं, स्पेसिफिक स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। Hence, different proteins in the membrane play a major role in both active as well as passive transport. और डिफरेंट तरह के प्रोटीन होते हैं जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों में। Pumps are proteins that use energy to carry substances across the cell membrane. Pumps, ऐसे प्रोटीन्स को pumps कहते हैं जो एनर्जी यूज करते हैं चीजों को इधर उधर भेजने के लिए। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो प्रोटीन यूज होंगे जो मेम्ब्रेन में हैं, उन्हें पंप्स बोला जाएगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बिकॉज आपको पता है आपके घर में भी मोटर और पंप लगी हुई होती है, पानी जमीन से खींचती है, तो उसमें क्या लगती है? बिजली की एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, जिसकी वजह से वो फोर्स बनाती है, जिससे पानी ऊपर आता है आपकी नल में, प्लम्बिंग में, सब जगह। तो पंप्स इसी तरह से देखे गए हैं कि मेम्ब्रेन में भी कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें पंप्स बोला जाता है, और वो चीजों को कैरी करके सेल के दूसरी तरफ भेजते हैं। इसीलिए इस ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। These pumps can transport substances from low concentration to high concentration. इसे अपहिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। अपहिल मतलब जैसे कुछ चीज, भारी सी चीज ऊपर ले जानी है, कुछ चीजों को ऊपर की तरफ लेके आना है, तो एनर्जी तो लगेगी, पहाड़ तक चढ़ाना है। Transport rate reaches a maximum when all the protein transporters being used or are saturated. इसकी भी मैक्सिमम तभी होगी स्पीड जब सारे के सारे ट्रांसपोर्टर क्या हो जाएं, सैचुरेट हो जाएं। Like enzymes, they carrier protein is very specific in what it carries across the membrane. तो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स कैरियर प्रोटीन की तरह ये भी स्पेसिफिक होते हैं, इनमें भी इनहिबिटर से इनहिबिट हो सकती है स्पीड। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल इनके सराउंडिंग में हो जो रुकावट बन रहा है, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई होप आई एम क्लियर टिल हियर, इट्स क्लियर। नाउ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें अभी तक हमने जितने भी ट्रांसपोर्ट पढ़े, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसका एक कंपैरेटिव टेबल बना दिया है, तो उससे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ सकता है कि रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। सिंपल डिफ्यूजन में कोई स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत है कि नहीं? नहीं है।
फैसिलिटेटेड में चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, होता भी है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें पंप्स कहते हैं। हाईली सिलेक्टिव यानी कोई भी पर्टिकुलर चीज को ही ले जा सकते हैं, हर चीज को नहीं ले जाएंगे। स्पेसिफिक एंड सिलेक्टिव है, सिलेक्शन करेंगे। तो सिंपल डिफ्यूजन में नहीं सिलेक्शन, कोई सिलेक्शन नहीं, सब चीजें डिफ्यूज हो सकती हैं। पर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में सिलेक्शन जरूरी है, पर्टिकुलर सॉल्यूट ही जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पर्टिकुलर चीज ही जाएगी। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स मतलब वो पर्टिकुलर जगह पर जाकर सैचुरेशन कर देगा, मतलब वो जितने मॉलिक्यूल ज्यादा अटैच होंगे उतना ज्यादा जाएगा, तो इसे बोलते हैं सैचुरेशन। जब केमिस्ट्री में सैचुरेशन पढ़ते हो, कोई सोल्यूशन सैचुरेट कब होती है, जब उसमें हम ज्यादा 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 सोल्यूट मिलाते जाते हैं, वो सैचुरेटेड बन जाती है। इस तरह से ट्रांसपोर्ट भी सैचुरेट हो सकता है। तो डिफ्यूजन वाला ट्रांसपोर्ट सैचुरेट नहीं होता, बाकी दोनों ट्रांसपोर्ट सैचुरेट होते हैं, फैसिलिटेटेड भी और एक्टिव भी। अपहिल ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा, एक्टिव को कहते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट। रिक्वायर्स एटीपी, एटीपी कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करता है, तो एटीपी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज करता है, सिंपल और फैसिलिटेटेड नहीं करते। क्लियर, इज इट क्लियर टू ऑल? यहां तक क्लियर हुआ, टेबल समझ में आ गया? चैट में आप बता सकते हो कि इट इज क्लियर और नॉट। Now, plant-water relation. Water is essential for physiological activities of the plant and plays a very important role in all living organisms. पानी बहुत जरूरी है हर चीजों के लिए, जो भी एक्टिविटी होती है। इट प्रोवाइड्स मीडियम इन विच मोस्ट सब्सटेंसेस डिसॉल्व, क्योंकि ये सब चीजों को घोलता है अपने अंदर, हर चीज इसी में घुल के सब जगह पहुंचती है। तो वाटर, चाहे पौधा हो उसके लिए पानी जरूरी है, चाहे हम है हमारे लिए पानी जरूरी है। The protoplasm of the cell is nothing but water in which different molecules are dissolved and suspended. Protoplasm भी cells का प्रोटोप्लाज्म, सेल के अंदर भी पहुंचता है पानी। तो वो एक ऐसी चीज है जिसके अंदर सब चीजें घुली रहती हैं, सस्पेंड रहती हैं। वाटरमेलन, खरबूजे की बात अगर करें तो 92% उसमें पानी होता है, तभी गर्मियों में खरबूजा ज्यादा खाया जाता है। Most herbaceous plants have only about 10 to 15% of its fresh weight as dry matter. बहुत सारे हर्बेशियस प्लांट ऐसे होते हैं, हरे भरे प्लांट, जो 10 से 15% उसका फ्रेश वेट जो होता है वो ड्राई होता है, बाकी सारा पानी होता है। सिर्फ 10 से 15 होता है उसके अंदर सॉलिड चीजें, कहने का मतलब ये है, बाकी सब उसका वाटर वेट होता है। सिर्फ 10 to 15% उसका ड्राई मैटर होता है। Course distribution of water within a plant varies. Woody plants have relatively very little water, while soft plants may contain more. तो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन पौधे में अलग अलग लेवल का हो सकता है। जैसे अगर हम बोलें, लकड़ी की बात करें, लकड़ी में तो कम पानी होगा, और पत्तों की बात करें तो उसी पेड़ के पत्तों में ज्यादा पानी होगा। इज इट क्लियर? प्लांट वाटर रिलेशन, ये पैराग्राफ क्लियर हुआ? नाउ अ सीड में अपीयर ड्राई बट इट हैज स्टिल वाटर। बीज हमें ड्राई तो दिखता है, बट उसके अंदर फिर भी पानी होता है, अदरवाइज इट वुड नॉट बी एबल टू अलाइव और रिस्पायरिंग। अगर उसमें पानी नहीं बचा होता तो वो तुरंत से पानी को और पानी देते जब हम उसको, वो तो एक्टिवेट नहीं होता, उसके अंदर को खुद का थोड़ा बहुत जो पानी होता है वो एंजाइम को एक्टिव करना शुरू कर देता है जब हम कोई बीज बोते हैं तो। ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स लार्ज अमाउंट का पानी अपने अंदर रोज लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ इट इज लॉस्ट ड्यू टू द एयर, इवन एवापोरेशन फ्रॉम लीव्स, ट्रांसपिरेशन। उनका पानी उड़ता भी रहता है पत्तों से, जिसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। मेच्योर कॉर्न का प्लांट 3 लीटर पानी एक दिन में एब्जॉर्ब कर लेता है, वाइल अ मस्टर्ड प्लांट एब्जॉर्ब वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट।
और मस्टर्ड प्लांट क्या करता है, अपने वजन के हिसाब से पानी अब्सॉर्ब करता है 5 घंटों में. Because of its high demand for water, it's not surprising that water is often limiting factor for plant growth and productivity in both the agriculture and natural environment. तो पानी की इतनी सारी डिमांड की वजह से, जिसमें कोई सरप्राइज करने वाली बात नहीं है कि पानी अगर हम सप्लाई नहीं करेंगे तो कुछ भी पैदावार नहीं होगी. प्रोडक्टिविटी सब किस पे डिपेंड करती है? प्लांट ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है? वाटर पे. तो वाटर और प्लांट का बहुत बड़ा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है. प्लांट ग्रोथ डिपेंड्स ऑन वाटर. इज इट क्लियर टिल हियर? Now next topic is given, water potential. Okay, so water potential में it's written to comprehend water potential and understanding को certain standard terms is necessary. वाटर पोटेंशियल या प्लांट वाटर रिलेशन को समझने के लिए, अभी तो हमने उसकी थ्योरी पढ़ी है, अब उसको समझना है. मैं बोल भी रही हूँ डायरेक्ट रिलेशन है, पर हमें वाटर पोटेंशियल के बारे में समझना पड़ेगा. ये एक स्टैंडर्ड टर्म है, एक कांस्टेंट है ये. ठीक है, इसका सिंबल भी दिखा रखा है, ये त्रिशूल जैसा, और डब्ल्यू उसके सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है. तो वाटर पोटेंशियल शाय डब्ल्यू इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट. शाय डब्ल्यू, अगर हम इसको समझ लेंगे तभी हमें समझ में आएगी कि पानी मूव कैसे करता है, बिकॉज इसी के रूल्स पे, इसी के फॉर्मूले से पानी मूव करता है. शाय डब्ल्यू की क्या वैल्यू है, तो और इसकी वैल्यू किस चीज के लिए कितनी होती है, और इसकी वैल्यू किस किस चीजों पे डिपेंड करती है. शाय डब्ल्यू के फैक्टर्स कौन से हैं जो शाय डब्ल्यू को कंट्रोल करते हैं, इसको शाय बोलते हैं. वैसे लिखने में पी एस आई होता है, पर पी साइलेंट होता है, तो साई बोला जाता है, एस आई. और सिंबल होता है त्रिशूल. तो वाटर पोटेंशियल का दिया हुआ है ब्रैकेट में, शाय डब्ल्यू इज अ कॉन्सेप्ट फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट, सोल्यूट पोटेंशियल शाय एस. और ये डिपेंड करता है दो चीजों पे, शाय एस एंड प्रेशर पोटेंशियल शाय पी. ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल शाय पी पे और शाय एस पे डब्ल्यू डिपेंड करता है, शाय डब्ल्यू. फॉर्मूला होता है शाय डब्ल्यू इज इक्वल टू शाय एस प्लस शाय पी. ओके, तो इन दोनों का ऐड होता है वाटर पोटेंशियल. टू मेन कंपोनेंट्स दैट डिटरमाइन वाटर पोटेंशियल. दो कंपोनेंट्स हैं वाटर पोटेंशियल के. Water molecule possesses kinetic energy in liquid and gaseous form. They are in random motion that is both rapid and constant. Water potential kinetic energy possess करते हैं, उनके अंदर kinetic energy होती है water molecules के अंदर, जैसे कि बाकी लिक्विड और गैसेस में भी होती है. मैंने आपको बताया डिफ्यूजन के वक्त कि डीओ लगाते हैं तो स्प्रे सारे रूम में फैलती है. क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल में एनर्जी है. तो इसी तरह से वाटर के मॉलिक्यूल में भी एनर्जी होती है. इसी वजह से वाटर फ्लो करता है, गैसेस फ्लो करती हैं, रैंडम मोशन में चलती हैं, रैपिड और कांस्टेंट रहती है ये एनर्जी. ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन सिस्टम द ग्रेटर इज काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल. जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पानी की किसी जगह पे होगी उतनी ज्यादा उसमें एनर्जी मिलती है. Hence it is obvious that pure water will have the greatest water potential. ये obvious है कि प्योर वाटर की सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल होगी. इफ टू सिस्टम्स कंटेनिंग वाटर इन कांटेक्ट, अगर दो ऐसे सिस्टम्स वाटर के कांटेक्ट में हैं, एक में जिसमें ज्यादा वाटर पोटेंशियल है, जिसमें ज्यादा पानी है, और दूसरे में जिसमें कम पानी है, तो वाटर कहाँ से कहाँ की तरफ जाएगा? वाटर हमेशा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा. समझ में आया? क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? The water will move from system containing water at higher water potential to one having at lower water potential. Is it clear till here? Okay. Now, this process of movement of water down a gradient of free energy is called diffusion. तो इसी process को diffusion बोला है. पानी भी higher concentration से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जाता है और इसको भी डिफ्यूजन कहते हैं. वाटर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय ग्रीक सिंबल साई. लास्ट के 3 लाइनों में लिखा है कि पानी के पोटेंशियल को भी साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, त्रिशूल से, एंड इज एक्सप्रेस्ड इन द प्रेशर यूनिट सच एज पास्कल. और इसकी यूनिट क्या है? पास्कल में प्रेशर की यूनिट जो है उसी से इसकी यूनिट शाई की भी यूनिट पास्कल होती है.
By convention, the water potential of pure water at standard temperatures, which is not under any pressure, is taken to be zero. कन्वेंशन के हिसाब से मतलब रूल्स के हिसाब से पानी का जो पोटेंशियल, प्योर वाटर का जो पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, किसी भी प्रेशर, उस पर कोई प्रेशर नहीं लगा रहे, नॉर्मल पानी रखा हुआ है, उस पर कुछ भी नहीं घोला है, ठीक है, प्योर वाटर है, प्योर वाटर का पोटेंशियल बिना प्रेशर के, कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सटर्नल एडिशनल प्रेशर के, स्टैंडर्ड नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हाईएस्ट होता है और जिसकी वैल्यू जीरो होती है, जीरो ही हाईएस्ट है। ओके, सो हाईएस्ट हम नहीं कह सकते, बट हम कह सकते हैं कि प्योर वाटर का एट नॉर्मल टेम्परेचर विदाउट एनी प्रेशर द प्रेशर पोटेंशियल इज जीरो। ओके, वाटर पोटेंशियल इज जीरो। बट जब हम उसमें कुछ घोल देते हैं, हम उसके अंदर चीनी घोल दें, नमक घोल दें, सॉल्यूट अगर हम उनसे घोल देंगे, तो अब क्या होगा, वाटर की मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, पानी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि अब उसके अंदर, पानी के अंदर दूसरी चीजें भी जगह घेर रही हैं, तो फ्री एनर्जी वाटर को घूमने की, चलने की कम हो जाएगी, तो उससे वाटर पोटेंशियल के अंदर कुछ अमाउंट वैल्यू लेस हो जाएगी, और जितनी वैल्यू लेस होगी वो होगा सोल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, उसे शायस बोला, बिकॉज वो इसीलिए कम हुआ बिकॉज उसमें सोल्यूट ऐड किया, तो वो सोल्यूट पोटेंशियल कहलाएगा। दिस लोअरिंग ऑफ मैग्नीट्यूड ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट इन द फ्रॉम द प्योर वाटर, प्योर वाटर का जीरो था, पर सोल्यूट डालते ही वो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव में वैल्यू हुई, तो कितना नेगेटिव हुआ वो क्या होगा, सोल्यूट पोटेंशियल होगा, and it is psi s. For a solution at atmospheric pressure, water potential psi w is equal to solute potential psi s. ऐसी सोल्यूशन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल रूम प्रेशर पे है, उसको वहां पर ज्यादातर जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है psi w इज इक्वल टू psi s, के वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल बराबर होते हैं। पर अगर हम कहीं पर प्रेशर लगा दें, एटमॉस्फेयर प्रेशर या फिर कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगा दें, तो यहाँ पर वो भी कंडीशन बताई गई है कि इफ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर सॉल्यूशन, इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस, तो ये ऐड हो जाएगा। दिस इज इक्विवेलेंट टू पंपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे कि आप पंप कराते हो, तो अब जितनी हाइट में पानी को ले जाओगे उसका पोटेंशियल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। कैन यू थिंक ऑफ एनी सिस्टम इन आवर बॉडी विद प्रेशर इज बिल्ड अप? हमारी बॉडी में कहाँ प्रेशर बिल्डअप होता है? आप कोई ऐसा सिस्टम देखते हो जिसमें प्रेशर बिल्डअप होता है? ब्लड प्रेशर बिल्डअप होता है आपकी आउटा में, हार्ट में, जो हार्ट ब्लड पंप करता है बाहर, बिकॉज ऑफ द what pressure the blood is exerted on the heart walls or the vessels. Pressure can build up in a plant system when the water enter a plant cell due to diffusion, causing a pressure build up against the cell walls, makes cells turgid. प्रेशर सेल के अंदर भी डेवलप होता है, प्लांट सेल के अंदर डिफ्यूजन की वजह से। अगर कंटिन्यूअसली उस सेल में पानी भरा जा रहा है, कंटिन्यूअसली अगर सेल में पानी भरा जा रहा है, तो सेल क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है, और वो अपनी सेल वॉल पे प्रेशर लगाता है, तो वो प्रेशर वाटर पोटेंशियल को भी बढ़ा देता है। तो प्रेशर पोटेंशियल क्या करता है, ऐड हो जाता है वाटर पोटेंशियल। क्लियर हुआ? ओके, इट्स क्लियर नाउ। कमिंग टू नेक्स्ट पेज, बस यहीं तक हम खत्म कर रहे हैं। फॉर्मूला दिखाई रखा है, psi w इज इक्वल टू psi s प्लस psi p, और ये फॉर्मूला आपको दोनों यानी सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल को मिलाकर आपका वाटर पोटेंशियल बनता है। ठीक है, जाइलम में ट्रांसपोर्ट में, जो जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है उसमें प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है, और इस रिलेशनशिप को बोलते हैं ये वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला, वाटर पोटेंशियल psi w इज इक्वल टू